I hope everybody is done till here. Yes. So what we have done, अब तक हमने क्या किया है, एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस में सिर्फ टोकन्स बनाए जो आपने अब तक किया है. अब हमें क्या करना है, ये जो टोकन्स है, एप्पल, एप्पल क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए. लुकिंग शुड बी अ वर्ब, राइट. इज टू, बाय, हर एक वर्ड का एक पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामेटिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो मुझे चाहिए, राइट. सो इसी कोड को मैं मॉडिफाई करती हूँ. टोकन्स तो मैं प्रिंट ही कर रही हूँ, मैं टोकन के जस्ट साइड में उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी प्रिंट करती हूँ. ठीक है. सो आई विल सिंपली पुट अ सेपरेटर बिटवीन एंड अब स्पेसिफिक फंक्शन अवेलेबल है, टोकन अंडरस्कोर POS. Can you zoom it? अभी मैंने क्या किया, सिंपली जो टोकन जनरेट किए उसके साथ उनका मैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए हर एक टोकन का, सिर्फ वो भी प्रिंट कर दी. नाउ आई वांट टू रन द सेल, टू रन द सेल शिफ्ट एंटर. ओके, spelling mistake. Token underscore POS is not defined. Token dot POS. Right. It will be token dot POS. Underscore. Now let's do without underscore first. Let's see what happens. So here you can see 96, 87, 100. There are some numbers that I'm getting. I'm not able to understand what are these numbers. So basically, apple is a noun, right? Now for noun, there is a number assigned in background. Now that 96 represents to something. Everywhere you must be seeing same numbers repeated twice. 85, 85 देखो up और 4 दो बार आ रहा है. मतलब ये दोनों सेम टाइप का रिप्रेजेंट करते होंगे. तो हमने जो token dot POS किया ना, I do underscore also here. I'll see the name that is assigned to those numbers. ठीक है? So now you can see PROPN मतलब proper noun. You can see looking is a verb. You can see UK is a place, so it's a proper noun. You can see this is a symbol, dollar is a symbol, one is a number. ठीक है? Now PROPN, I don't understand what is this. I want to know the meanings of these abbreviations that are given to here. So how to do that? इसके लिए Spacy में एक function available है, which can explain me the meaning of these words. ठीक है? So here in the same code, what I can do, I can ask Spacy to explain me token.pos. ठीक है? तो इसी में ही कर लेते हैं. अभी token.pos प्रिंट किया, अभी एक और सेपरेटर लगाते हैं. उसके बाद में I want Spacy to explain, Spacy dot explain. क्या एक्सप्लेन करना है? टोकन डॉट POS एक्सप्लेन करना है. So that I'll pass as an argument. POS underscore explain करना है, right? Now if you see the output, PROPN means a proper noun, right? Yes, we can see ADP, at position. SYM means symbol, NUM means numeral, right? Now, let's take another example. I want to, now here, this verb, buy, is into which tense? If I want more specification, like for example, Present. I made a mistake. So here made will be giving me as a verb, but that verb is in the past tense. I make cheesecake. Make will give me a word, will give me as a verb, but it will be into present tense. So क्या अगर मुझे ये जानना है कि ये sentence present tense में, past tense में, can I do that? Yes, Spacy gives me that facility also. कैसे कर सकते हैं? इसी में आगे करते हैं इसको. यहाँ पे मैंने इसको explanation किया. अब मुझे क्या चाहिए? ये जो टैग्स Spacy ने मुझे दिए हैं, so I will simply print. ओके, यहाँ पे मैं एक और सेपरेटर पहले डाल देती हूँ.
एक और चीज मिला, NNP, VBZ, VBG, right? Now what is the meaning of this? Who can explain me? Who can explain me the meaning? In spacey, there's a function जो हमें explain करता है, spacey dot explain, जिसने हमको ये सारी मीनिंग्स एक्सप्लेन किए थे ना, प्रॉपर नाउन का ये PROPN मतलब प्रॉपर नाउन होता है, PART मतलब पार्टिकल होता है, तो इसका मीनिंग सेम spacey dot explain फंक्शन में यूज कर सकते हो. So again I'll be using this spacey dot explain function यहाँ पर. इसके बाद यूज कर लेते हैं, let's put a separator again. And spacey dot explain, अभी क्या एक्सप्लेन करवाना है? टोकन डॉट टैग्स. Now you can see verb is in the present participle form. Here you can see. Now let me change the sentence here. I made a mistake. And let me just run this doc again and this again. Now you can see made here is a verb. Made is a verb, and you can see it can even tell me that it is into which tense, right? You all understood this, right? Now let's do something fun. Open Google, हम एक वेबसाइट से रैंडम टेक्स्ट लेते हैं and then उस पे हम कुछ POS करेंगे. So let me just type Microsoft earning reports and let me take the, if you go to the first website. From here I'll just copy paste some of the text. कॉपी किया मैंने टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट अर्निंग रिपोर्ट मैंने कॉपी किया, गूगल पे डाला, फर्स्ट लिंक को कॉपी किया. सो दिस इज अ वेबसाइट व्हिच इज गिविंग मी फॉर एवरी ईयर एवरी क्वार्टर बेसिकली दे गिव देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. ठीक है, यहाँ से हमने इसको ये कुछ टेक्स्ट कॉपी किया. ओके, अभी हम इस टेक्स्ट को let me give this a name, earning report, some variable I am taking, and 1 2 3 paste. So this is my sentence. Now earning report. ठीक है, zoom. सिंपली एक वेरिएबल बनाया, अर्निंग रिपोर्ट या एनी नेम यू कैन गिव, और उसमें वो जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट किया. हो गया यहाँ तक सबका. अभी थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि ये जो मैंने कॉपी किए हैं, these are some of the reviews. कोई होटल वेबसाइट है, उस पर रिव्यूज है, फूड के रिव्यूज है, और मुझे पता करना है कि ये रिव्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो बेसिकली मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है ऑन अ बिगर टेक्स्ट दैट इज अवेलेबल टू मी. अब सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो कोई जो कमेंट्स होंगे उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, इमोजीज होंगे, क्या वो यूजफुल है सेंटिमेंट फाइंड करने के लिए? नहीं. फॉर दैट यूज केस इट मे बी गार्बेज. For some other use case, punctuations may be required. ठीक है, तो let's see कि ये वाले जो हमने पैराग्राफ टेक्स्ट कॉपी किया है उसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि स्पेस हो गई, अगर एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जैसे etc डॉट वगैरह, etc डॉट, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड्स कंसीडर होते हैं, इन सबको रिमूव करके देखते हैं. ठीक है, सो हाउ टू डू दैट. सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक जो टेक्स्ट है ना उसमें मैं etc का लिख दे रही हूँ बीच में, etc डॉट, so that I can show you that this is an extra word और जो हमें रिमूव करना है. ओके,
करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस का टोकनाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं? NLP फंक्शन में ये टेक्स्ट डाल देते हैं, राइट? सो doc इक्वल्स टू NLP। अब ये टेक्स्ट मैंने कहाँ सेव किया हुआ है? अर्निंग रिपोर्ट वेरिएबल में, है ना? तो ये अर्निंग रिपोर्ट, ये मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। सो नाउ ये स्टेप के बाद क्या हो गया? doc इक्वल्स टू NLP अर्निंग रिपोर्ट, मतलब मैंने ये जो पूरा सेंटेंस, पूरा जो पैराग्राफ है उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? अगर आप इसको डॉक को भी प्रिंट करके देखोगे तो आपको एक वर्ड एक टोकन के जैसे दिखेगा। ठीक है? अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट? हर एक टोकन का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। जब पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा तभी तो मैं पता कर पाऊंगी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच अदर्स है, मतलब ये मेरे काम का ETC या स्पेस है या पंक्चुएशन है, तभी तो उन POS के बेसिस पे मैं उनको एलिमिनेट कर पाऊंगी, राइट? सो पहले मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। पार्ट ऑफ स्पीच कैसे करते हैं? अभी जस्ट हमने किया फॉर टोकन इन डॉक, सी प्रीवियस स्टेटमेंट, फॉर टोकन इन डॉक प्रिंट, यहाँ पे मैं टोकन प्रिंट कर रही हूँ और टोकन का POS प्रिंट कर रही हूँ, राइट? यही कोड में जस्ट एक बार कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट करती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ POS तक ही प्रिंट करती हूँ, बाकी सब चीजें स्किप कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे सबका यहाँ तक हुआ, सबके टोकन्स के POS मिल गए। अब आप यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग स्पेस है, ETC हमने कहीं लिखा था एंड में। See, there are many punctuations also, there are many spaces also. If I, where is my ETC? Actually मैंने ETC लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। So I'll execute earning report, then I'll execute the tokens, and then I'm printing the POS now. So if I search for ETC, where is somewhere here, see ETC. So you can see type X मतलब extra. This full stops, they are considering them as extra, right? So जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो ऐसे एक लाइन के सेंटेंसेस तो होते नहीं है। हमारे डेटा सेट्स में तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें इतने, हमने सिर्फ एक पैराग्राफ लिया है, यू कैन सी सो मेनी, लेट्स सी हाउ मेनी आर दीस थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट, ठीक है? एंड देन वी विल रिमूव देम। सो नेक्स्ट what we can do, I want to remove punctuation marks, extra characters, right? So for what I'm doing, I am let's remove punctuations, extra characters, okay? So for token in doc, अभी लिख रहा है? Is it visible now? Yes. So for token in doc, now till now what I was doing, I was simply printing what I did earlier. I simply printed the token and the token का tag, right? This is what I did अब तक। अब मुझे क्या करना है? मुझे सारे प्रिंट नहीं करने, मुझे कौन से प्रिंट करने हैं? जो कि मैं ऊपर इसके ऊपर एक लिस्ट दूंगी, उस लिस्ट में जो जो आते हैं सिर्फ वही प्रिंट करने हैं। So here what I'll do, if token.pos is
इन अभी सबसे पहले मैं क्या चेक कर रही हूँ, ये जो सारे जो मुझे नहीं चाहिए ना, स्पेस मुझे नहीं चाहिए, पंक्चुएशन मुझे नहीं चाहिए और अदर्स भी नहीं चाहिए समझो। तो अदर्स का क्या था, एक्स था, कैपिटल एक्स, राइट। तो अभी मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, इफ टोकन डॉट पीओएस मतलब इसी टोकन का पार्ट ऑफ स्पीच इज इनटू दिस लिस्ट, या तो वो स्पेस हो, या तो वो पंक्चुएशन हो, या तो वो एक्स हो, तो आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट टोकन एंड उसका पीओएस। लेट मी सिंपली रन दिस। Token dot text. प्रिंट स्पेस कहाँ पर प्रिंट स्पेस से प्रिंट के पहले स्पेस चाहिए। Indentation is basic. स्पेस Okay, if के अंदर ये space है, okay? So if then हाँ, now you see so many, if you see in the output, we have so many punctuations, so many spaces, so many extras into just one paragraph. Now imagine you are having a data set of reviews, where every review will be one paragraph. Every paragraph will be having so many kind of garbage values for us. Now what I want, something which is not into this. So same code में in जो हमने किया ना, if I do not in, तो इसका reverse मिलेगा, ये सब हट जाएंगे, not in करके रन करते हैं, so see, I get clean data now, based on part of speech. Yes, हमने simply क्या किया, ये जो यहाँ पे सिर्फ not add किया मैंने, अच्छा भी नहीं। ठीक है। अब these are the tokens which, ये टोकन है जो मेरे को यूज आने वाले हैं, जिनको मैं यूज करके अपना सेंटिमेंट एनालिसिस करने वाली हूँ, या जो भी मेरे को एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है वो कर रहा है। अब इस कंडीशन में तो मैं इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, सो लेट मी जस्ट पुट देम इनटू अ लिस्ट। ठीक है, सो एक न्यू सेल बनाते हैं। सो लेट मी टेक माय फिल्टर्ड tokens and my filtered tokens for Kindly scroll up. yeah. So अभी मैंने क्या सेम कोड में for token in doc if the token is not there into that list। अब आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिस्ट में चीजें ऐड कर सकते हो। आपको स्पेसेस चाहिए तो आप मत रखो यहाँ पर स्पेस, पंक्चुएशन आपके एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट है तो आप उसको रिमूव मत करो, या और कोई चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सम नंबर्स आर देयर समटाइम्स आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके यूज केस जो आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से नंबर्स भी रिमूव कर सकते हो। सो पीओएस इस तरह से हमें हेल्प करता है। दिस इज वेयर वी यूज पीओएस, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। नाउ अभी यहाँ मैंने क्या किया, फिल्टर्ड टोकन्स जो ये वेरिएबल था उसमें मैं सिंपली सारे जो भी मेरे टोकन्स इस लिस्ट ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सबको मैं फिल्टर्ड टोकन्स में अपेंड करते जा रही हूँ। ठीक है, एंड इफ आई सिंपली नाउ इफ आई प्रिंट माय फिल्टर्ड टोकन्स ना, अभी बहुत सारे टोकन्स होंगे, लेट मी जस्ट प्रिंट फर्स्ट 20 टोकन्स। So see, I got the data that I want. अब ये colon underscore 20 बेसिक पाइथन का कॉन्सेप्ट है, start from 0 go till 20 but do not include 20. So you can see Microsoft will be token number 0, corporation token 2, 0, 1, 2, 3 ऐसे, ये 19th नंबर पे पीरियड will be there. ठीक है, so now I'll just revise। हमने अब तक क्या किया, एक सेंटेंस लिया, या फॉरगेट सेंटेंस, हमने एक पैराग्राफ लिया रैंडम वेबसाइट से। ठीक है, तो आपके समझो रिव्यूज आपने लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस या जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपने उसको हर एक सबसे पहले टोकनाइजेशन परफॉर्म किया। टोकनाइजेशन करने का मीनिंग क्या था, सेंटेंस को वर्ड्स में कन्वर्ट किया। अब उन वर्ड्स में से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेरे काम के नहीं है। अगेन
इट डिपेंड्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि कौन से टाइप के पीओएस रिक्वायर्ड है, कौन से टाइप के पीओएस नहीं रिक्वायर्ड है। तो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आप उन्हें रखिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उस तरह से रिमूव करके ये मेरी फाइनल लिस्ट आई। अब आपने वेक्टराइजेशन देखा होगा कल आई थिंक। अब मुझे मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है, ट्रेन करना है, तो वहां पे ये टेक्स्ट में नहीं दे सकती। अब इस टेक्स्ट को मैं किसी तरह नंबर्स में कन्वर्ट करूँ। So how to do that? That you have seen into the previous sessions. So I don't take the text directly and convert it into numbers. I clean it first and then I convert it into numbers and then give it to the model. Okay. So this is now consider an application. आप कोई स्टूडेंट है जो TOEFL एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आप एक पोर्टल बना रहे हो जहाँ पे स्टूडेंट्स इंग्लिश के ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक टाइटल, आप एक टॉपिक देंगे, स्टूडेंट्स विल राइट देयर एसेज ऑन दोस टॉपिक्स। अब जो भी उन्होंने ऐसे लिखा है उसको आपको एनालाइज करके उनको कुछ सजेशंस देने हैं। सो अगर मैं जो भी पैराग्राफ है उसमें उसका ये पीओएस वगैरह फाइंड कर लूं और फिर उसमें से मैं अगर पता कर पाऊं कि कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ब्स यूज किए, कितने एडजेक्टिव्स यूज किए, कितने एडवर्ब्स यूज किए, अगर मैं ये काउंट किसी तरह पता कर पाऊं और उन काउंट्स के बेसिस पे मैं सजेशन दे सकती हूँ ना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में दे रही हूँ मतलब आई शुड हैव द एबिलिटी टू डिस्क्राइब नाउन्स। सो अगर नाउन्स को जो डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स, अगर मेरे एडजेक्टिव्स का काउंट कम है तो मैं सजेशन दे सकती हूँ यूज मोर एडजेक्टिव्स और you need to work on describing the nouns, on that quality you need to work on. So इस तरह की applications में ये POS tagging मेरे को काम में आ सकता है। So अभी मेरे को क्या टास्क करना है कि मुझे पता लगाना है कि कितने nouns हैं, कितने verbs हैं, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। So again स्पेसी में count by करके फंक्शन अवेलेबल है, उसकी हेल्प से मैं ये जो पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में उसका काउंट पता कर सकती हूँ, ठीक है। So let's do that. So count equals to dot count by, now spacey dot attribute dot, see if I remove POS dot, now see on these many attributes we can perform count by. Here it gives me the list, so I can do it on tags. So here I will select POS. And if I simply print count, you see, oh, okay. So you see that 103, again there are some numbers I am getting. 103 किसी एक का टैग असाइन होगा या तो नाउन्स होंगे या वर्ब्स होंगे, किसी एक को नंबर असाइन होगा 103 और उसका काउंट कितना है 11. Now you see here these curly brackets and keys and values, मतलब ये डिक्शनरी है, right? So I can print all of them with the help of dictionary. But उसके पहले let's just see कोई भी एक 96 वगैरह कैसे देखते हैं, क्या how do we actually see that? So vocab dot vocab of let's say number 96 dot, अब इसका text क्या है? So you can see proper noun. So there are 14 proper nouns available into that sentence. अब इसको मैं हमारे रीडेबल फॉर्म में थोड़ा कर लेते हैं. So it's a dictionary. So let's use key value pair concept. So for key comma value in count dot items, print. अब print क्या करना है, वही same doc dot vocab. अभी मैंने सिर्फ 96 के लिए किया था. अभी I'm doing it for all the keys. And what is the value that I'm printing here? So now you can see that I have 11 spaces available, 14 proper nouns are there, 21 verbs are there. So this is how part of speech can help you for your use cases. It is done till here? Yes. हाँ.
No, ma'am. How much time is left? For my session. Everybody is done. POS. Okay. So. सभी का हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? अगर किसी को एरर्स आ रही हैं तो I will share this notebook with you in the WhatsApp group. You can simply go through the code later on. ठीक है? So हमने just to give a quick revision, part of speech क्या होता है? जो भी sentence है उसमें उसका grammatically हमें descriptions provide करता है part of speech. ठीक है? तो हमने ये भी देखा कि कौन-कौन से टाइप के use cases में हम part of speech कैसे किसी use cases में हम इसको use कर सकते हैं, right? अब इसके अलावा एक चीज होती है NER. The next thing is NER, Named Entity Recognition. Entity means क्या? Real world entities हमें recognize करनी. For example, AP Shah Institute, APSIT is organizing a 2 days FDP. Now here APSIT is an organization. It is a noun, but that also can be it's an organization, right? APSIT is located in Thane. So Thane is a location, right? For this FDP, we received a grant of 2 lakh rupees. 2 lakh is money, right? So these are real world entities, ठीक है? So अगर मुझे अब कहाँ मैं यूज कर सकती हूँ? कौन सी टाइप के एप्लीकेशंस में ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज का मेरे को यूज आ सकता है? कंसीडर अ सिनेरियो, गूगल न्यूज वेबसाइट और एनी न्यूज वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, ठीक है? अगर मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, समझो सर जो है AI रिलेटेड न्यूज रीड करते हैं, समझो मैडम कुछ या मुझे बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज में ज्यादातर देखती रहती हूँ, या कोई है जिनके फैमिली मेंबर्स यूएसए में भी रहते हैं, तो आप यूएसए बेस्ड जो भी न्यूज है वो आप देखते रहते हो, राइट? सो मुझे जो रिकमेंडेशंस आने चाहिए वो कौन से लोकेशन पे बेस्ड आने चाहिए? या मुझे मेरा इंटरेस्ट है बॉलीवुड, तो मुझे मेरी एंटिटी क्या होगी? बॉलीवुड रिलेटेड न्यूज मुझे देनी चाहिए। सर को जो एआई रिलेटेड एंटिटीज जिस भी आर्टिकल में अवेलेबल है वो सर को मिलने चाहिए। यूएस रिलेटेड जिस भी आर्टिकल में इंफॉर्मेशन है वो मैडम को मिलनी चाहिए, राइट? सो इस तरह से एक न्यूज वेबसाइट पे हजारों आर्टिकल्स हैं, राइट? उनमें से मुझे हजारों के हजारों नहीं डिस्प्ले होंगे ऑन माय रिकमेंडेशन। मुझे कौन से डिस्प्ले होंगे? सिर्फ वही जिसमें वो एंटिटीज अवेलेबल है जो मैंने प्रीवियसली रीड किए हैं, राइट? ऐसे एग्जांपल ले लो, हम सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, इन सब पे हम मूवीज देखते हैं। तो समझो अगर मैंने एक बॉलीवुड मूवी देखी, मे बी वो साउथ वाला मूवी देखा, कोई पर्टिकुलर हीरो का मूवी देखा या पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस का मूवी देखा, तो मुझे उसी टाइप के रिकमेंडेशंस आते हैं। आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपको ज्यादा रिकमेंडेशंस हॉलीवुड मूवीज के आएंगे, या मुझे कोई पर्टिकुलर एक्टर के मूवीज पसंद है तो जब भी उस एक्टर का कोई मूवी लॉन्च होगा मुझे वो एंटिटी के रिकमेंडेशंस आएंगे, राइट? सो नाउ पीओएस में हमने क्या देखा? ग्रामेटिकल हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, लेकिन नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या होता है? रियल लाइफ एंटिटीज जो है उनको हम रिकॉग्नाइज कर। अब कैसे कर पाएंगे? अब अगेन एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सेंटेंस है मेरे पास, न्यूज आर्टिकल है बेसिकली, उस न्यूज आर्टिकल को मुझे इनको एआई रिलेटेड देना है, इनको जापान की न्यूज देनी है, मुझे बॉलीवुड की न्यूज देनी है, तो कैसे करेंगे? हर एक आर्टिकल को रीड करके उसमें से ढूंढ के तो सेपरेट नहीं करेंगे ना। सो हमें आर्टिकल्स का नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन उस पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें से जो मैं मैडम को जो चाहिए वो वाले एंटिटी वाले सेग्रीगेट करके इनको डंप किया, मुझे बॉलीवुड दिया, इधर यूएस बेस्ड जापान बेस्ड न्यूज दिया। तो इस टाइप के सिनेरियो में मैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का कांसेप्ट यूज कर सकती हूँ। Another example can be, समझो AP शाह इंस्टीट्यूट, अभी एडमिशन सीजन चल रहा है हमारे सभी कॉलेजेस में। यहाँ का एक एग्जांपल बताती हूँ। समझो हमारे वेबसाइट पे एक हमने एक फॉर्म बना रखा है कि आपके पास कुछ क्वेरीज हैं आप उसमें पोस्ट करो। आउटसाइडर्स और स्टूडेंट्स को भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस पर वहाँ पोस्ट करते हैं। मैं AIML डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे सिर्फ AIML रिलेटेड क्वेरीज में इंटरेस्ट है। मुझे डेटा साइंस, IT, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल की क्वेरीज से मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है, तो why should I go through all the queries that are coming? I should only see what is of my use. Data science should only see what is of their use. Civil should only see what is of their use. अब क्या होगा? रिसेप्शन पे एक आदमी को बिठाना पड़ेगा,
देखो कौन सी डिपार्टमेंट का मैसेज है, उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करो। So, अगर मैं वहां पर एंटिटीज बना दूं, AIML is one entity, data science is one entity, civil is one entity, mechanical is one entity, computer is one entity. स्टूडेंट जो भी मैसेज करेगा उसमें अगर उसने एंटिटी अपना ब्रांच अगर बताता है ये बच्चा कौन सी ब्रांच का हूँ, कौन सी ईयर का हूँ मैं, अगर उसमें कंप्यूटर एंटिटी आ रही है दैट शुड गो टू द सपोर्ट टीम जो कि कंप्यूटर का क्वेरी सॉल्व कर रही है। इफ देयर इज एन AIML एंटिटी इट शुड गो टू AIML का टीम जो वो क्वेरी कर रही है। सो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोस कैन बी, कोई कस्टमर सर्विस कस्टमर केयर है, कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है। अब मैं समझो मैंने गोदरेज के कस्टमर केयर पे फोन किया, मेरे को वॉशिंग मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को फ्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग टीम ये इनको हैंडल कर रही होंगी ना। सो इफ आई एम राइटिंग अ रिटन कंप्लेंट, एसी वाला है तो एसी वाली टीम को जाए, फ्रिज वाला, तो ये एसी फ्रिज ये सब नाउन है, लेकिन these are real world entities also. So with the help of POS only मैं इन्हें segregate कर सकती। इसके लिए मुझे चाहिए named entity recognition concept, ठीक है? अब ये भी हम कर सकते हैं with the help of Spacy library. So let's do it quickly. I think how many minutes are there now? 10 minutes. Okay, just 10 minutes. We'll do it quickly. Open a new Colab notebook. इधर से या फाइल में यहाँ से भी एक न्यू नोटबुक ओपन कर सकोगे, या कंट्रोल N करोगे तो हो जाएगा। हाँ, न्यू नोटबुक। ठीक है, अगेन इंपोर्ट स्पेसी इंपोर्ट करेंगे, और वो जो मॉडल था ना इंग्लिश मॉडल, जो पहले फर्स्ट वाला जो हमने फाइल बनाया ना अभी, उसके फर्स्ट 2 लाइंस एज इट इज कॉपी कर लें। इंपोर्ट स्पेसी load then same model en underscore कॉपी कर लें फिर पहले वाले से। ठीक है, हर एक कोड अलग अलग उसमें क्यों डालते एक में भी रन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप एक सिंटेक्स रन करके एग्जीक्यूट कर दें। अगर मैंने 3 लाइन में एक बार किया, अगर आपके फर्स्ट लाइन में एरर हो गई, किसी की अगर एरर हो गई, तो फिर वो उनको समझ नहीं आएगा कि मेरी कौन सी लाइन में, अदरवाइज देयर इज नो इशू, यू कैन डू इट एक बार में भी। मैं सिर्फ इसीलिए अगर मैं दोनों एक साथ लिखूंगी तो मैंने इंपोर्ट का स्पेलिंग रॉन्ग किया, सो एरर आएगा। सो फर्स्ट लाइन में एरर है, इसलिए सेकंड लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हो गया? Yes. अब मुझे क्या करना है, कौन सा कांसेप्ट हम कर रहे हैं? NER, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। तो मेरे को एक सेंटेंस लिखना है और उसके NER स्पेलिंग निकालने हैं, जैसे हमने POS में किया था, एक सेंटेंस लिखा और उसके POS बनाए। सो लेट्स कंसीडर अ सेंटेंस, और उस सेंटेंस का टोकनाइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट मी टेक अ सेंटेंस, doc equals to, ये वो पहले वाली सेंटेंस है। ओके, सो NLP दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू द टोकनाइजेशन। मैं दूसरा सेंटेंस अभी लेती हूँ। Tesla Inc is going to acquire Twitter for let's say $45 billion. तो ये सेंटेंस मैंने पर्पसली लिया, टेस्ला INC, मतलब दिस शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, 45 बिलियन शुड बी मनी, है ना। और अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एंटिटीज हैं इनबिल्ट इसमें। ठीक है, अब मुझे चेक करना है इस सेंटेंस, ये मेरा टोकनाइजेशन हो चुका है NLP फंक्शन से। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसमें कौन से एंटिटीज अवेलेबल है, रियल नेम्ड एंटिटीज। सो फॉर दैट आई डू फॉर ENT in doc.ENTS
ENT dot text and ENT dot label. मतलब entities text मतलब जैसे ये Tesla INC, this is text and label will be ORG. See, Tesla INC. If you want, we can put a separator here if it's confusing. Let me put a separator in between. So you can see Tesla INC. It is telling it's an organization. ORG. Yes. अब मुझे नहीं पता ORG मतलब क्या होता है. कौन कैसे कैसे पता कर सकते हैं? Spacey dot explain, right? So it can tell me ORG के अंदर क्या क्या इसने समझा. Money मतलब क्या क्या होता है. So let's try. Spacey dot okay, पहले एक separator दे देते हैं. Spacey dot explain these labels. Incomplete employee. Now see, ORG means companies, agencies, institutions, etc. It will consider them as organizations. Monetary value, including units, they all will be considered as money. मतलब अगर dollar sign हुआ, it will be considered that as money. Rupee sign हुआ, it should be considered that as money. ठीक है? So this is how named entity क्या क्या available है इस sentence में वो मैंने check किया, right? अभी Spacey का एक function है displacy. उसके help से क्या होता है कि इसको beautifully represent कर सकते हैं, ठीक है? So वो कैसे होता है? From Spacey import displacy. Forward sliding आपके भी auto generate हो ही रहा होगा ना कोलैब में. So from Spacey import displacy. Now I'll render displacy dot render this doc style equals to ENT. So see, this is how it gives. This is again just writing the sentence, but you can see Tesla. ये जो पहले output आया था, पहला जो output था Tesla INC और $45 billion. इसमें दो entities दिखाए थे इस sentence में, ORG और money. उसी sentence को just ऐसे represent किया है. Tesla INC is an organization and $45 billion is the money. ठीक है, अभी ऐसे कौन-कौन से entities हैं जो Spacey में already available हैं? If I want to know their list, what I'll simply type NLP dot py labels. For NER I want to know. So यहाँ पे अब ये सारे लेबल्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है? अब जरूरी नहीं है ना कि मेरे एप्लीकेशन में मुझे यही वाले लेबल्स की जरूरत हो. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया AML, डेटा साइंस, IT में कोई ये लेबल्स चाहिए. आई कैन क्रिएट माय ओन लेबल्स. समझो मेरा कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें मुझे ड्रग्स करके एक लेबल चाहिए. So that is not here available here, but we can create our own labels. ठीक है? हाँ. Zoom करना है क्या?
going to acquire Twitter for $45 billion. Twitter is also an organization, right? But ये इसको organization represent नहीं कर रहा है, ठीक है? Let me just write Twitter INC after this and let me try what happens. मैं ये doc को run कर रही हूँ, इसके entities को run कर रहे हैं and see अभी भी जो output आया उसमें Twitter नहीं दिया, है ना? Let me put T as capital. Twitter इसको रन करते हैं. Now you see Twitter INC. इसका मतलब क्या है? ये जो मॉडल है इसने कुछ तो रूल सेट किया है, that is a word is followed by INC and that word is first word is capital, then it is an organization. मतलब ये rule based systems के हिसाब से इसको ट्रेन किया, right? ठीक है. अभी ये जो हमने नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन किए, ये हमने किसके थ्रू किया? स्पेसी का जो प्री ट्रेन मॉडल है, जो हमने ये फर्स्ट यहाँ पे डाउनलोड किया था, ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हगिंग फेस. लेट्स सी, जस्ट गो टू गूगल, हगिंग फेस नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन टाइप करें. हगिंग फेस इज अ कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं. सो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का मॉडल देखते हैं. फर्स्ट मॉडल देखते हैं, BERT बेस्ड NER. Everybody is here. You can just see here. ये देखो, ये this is a model BERT based NER. अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो it has been trained to recognize 4 types of entities: location, organization, person and miscellaneous. जैसे हमने इसमें देखा स्पेसी में, वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट थे, पर जरूरी नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको सारी एंटिटीज की जरूरत पड़े. आप कस्टमाइज कर सकते हैं. तो ये मॉडल है, उसको कस्टमाइज किया हुआ है फॉर लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और मिसलेनियस. अगर आप ये राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे लेट मी जस्ट ट्राई एग्जांपल. माय नेम इज वॉल्फगैंग एंड आई लिव इन बर्लिन. इसको एग्जीक्यूट. सी, माय नेम इज वॉल्फगैंग इज अ पर्सन and I live in Berlin is a location, right? So इस तरह से वो हमारा जो सेंटेंस था वो यहाँ पे ट्राई करते हैं. Tesla is going to acquire. So if I try that sentence here, let me remove INC and let's see what happens. See here. In this model मैंने INC remove किया, but still it is remembering, it is telling that Twitter is an organization. So it depends on how you train your model. Are you getting my point? ठीक है. So this is how named entity recognition जो है. अब अभी समझो, वो पहले हम जो अपने वापस कोड में आ जाते हैं. मुझे अपना खुद का, मुझे ये जो मेरा कोड था, ट्विटर INC लिखने पर ही सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा था. अगर मुझे इसको बताना है कि बाबा ट्विटर एंड टेस्ला आर ऑर्गेनाइजेशंस, आई वांट टू फीड दैट. या वो फार्मास्यूटिकल एग्जांपल में मुझे कोई ड्रग्स के नेम्स है, उनको बताना है कि दिस इज, गिव दिस अ लेबल्ड ड्रग. सो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है. सो उसके लिए पहले वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ स्पैन. स्पैन हमने जैसे अभी देखा था, फिल्टर्ड आइटम पिछले वाले उसमें हमने प्रिंट किए थे, कॉलन स्पेस कॉलन 20 लिखा था. दैट मींस मुझे कुछ चाहिए, समथिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग का मुझे डेटा देना होता है. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट नंबर जो मैंने दिया है, आई गो टिल द लास्ट नंबर जो मैंने दिया है, बट आई डोंट कंसीडर द लास्ट नंबर, राइट. सो मुझे जो आउटपुट मिल रहा था पिछली बार, गोइंग टू एक्वायर समथिंग मुझे आउटपुट मिला था. सो दैट वाज अ स्पैन. सो लेट्स सी द सेम हियर अगेन. So let me take which text, ये same text लेते हैं. अभी मैं यहाँ पे ये INC हटा रही हूँ ऑलरेडी, और ये टेस्ला का भी INC हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको ट्रेन करना है कि विदाउट INC also you take it as an organization. ठीक है. So अभी ये मेरा टेक्स्ट हो गया.
अभी फॉर एंटिटीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अभी ये इस लाइन से क्या प्रिंट होगा, एंटिटीज और उनके लेबल्स प्रिंट होंगे। See, it is telling me that Twitter is a person. It is like with small t. Small. See, मैंने दोनों टेस्ला और ट्विटर का टी स्मॉल किया, तो अभी वो टेस्ला और ट्विटर को ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रहा है, राइट? तो मे बी मेरी जो एप्लीकेशन में डेवलप कर रही हूँ उसमें टेस्ला और ट्विटर वर्ड्स बार बार आने वाले होंगे, और हम यूजुअली क्या करते हैं, सारे सेंटेंसेस को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आपने शायद कल के सेशन में कहीं देखा होगा कि फ्रीक्वेंट, मतलब मुझे काउंट करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई वर्ड, तो मैं समझो कोई वर्ड है मैक्स, तो मैक्स का M कैपिटल AX और एक जगह में लिखा हुआ है स्मॉल MAX, तो इट शुड नॉट काउंट देम एज टू सेपरेट वर्ड्स। एक ही वर्ड है बट दो बार फ्रीक्वेंसी उसका है, ऐसा काउंट होना चाहिए। तो यूजुअली मैं स्टार्टिंग में लोअर केस में कन्वर्ट कर देती हूँ सबको ना। अब ऐसा करने पे ये टेस्ला और ट्विटर का टी स्मॉल हो गया, तो फिर अगर मैं नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करूंगी तो ये इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगा। बट मेरा जो यूज केस जो भी मैं डेवलप कर रही हूँ उसमें टेस्ला और ट्विटर को ऑर्गेनाइजेशन ही कंसीडर करना है, ये मैं उसको कस्टमाइजेशन करना चाहती हूँ। तो हाउ टू डू दैट? तो अब देखो, अभी मैंने if I see in this doc what is the 0th token Tesla, I'm getting this output, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब मुझे अगर स्पैनिंग क्या होता है, अगर मैं समझो ऐसा देखती हूँ 2 to 5 अगर, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? This is 0, this is 1, this is 2. So start from 2, 3, 4, go till 5, but don't consider 5. So output should be going to acquire. Right? Now if I see इसका type, if I see type of this object, what it is going to give me? So see, span. अब अभी मुझे क्या, मेरा टास्क क्या था? टेस्ला और ट्विटर को ऑर्गेनाइजेशन बताना है, ठीक है? So ये जो स्पैन क्लास है ये मैं इंपोर्ट करने वाली हूँ फ्रॉम स्पेसी डॉट टोकन्स इंपोर्ट स्पैन। ओके, सी इसने मुझे डायरेक्टली कोड दिया। सी व्हाट आई एम टेलिंग, 0 डॉक मतलब इस डॉक में ये डॉक 0 to 1 मतलब start from 0, go till 1 but don't consider 1. That means I'm talking about Tesla. And what label I should give to it? ORG. Similarly, in the same doc, start from 5. That means Twitter. And I'm going to give this also a label as ORG. Now there is this function set entities, set EMTS. ये फंक्शन क्या करेगा? ये S1 इसको क्या इनपुट दे रहा है, क्या क्या एंटिटीज मुझे सेट करने हैं, तो ये S1 और S2 इसको इनपुट दिया। डिफॉल्ट इक्वल्स टू अनमॉडिफाइड मतलब बाय डिफॉल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ये जिसको समझता है वो तो वैसे की वैसे ही रखो। इसको एग्जीक्यूट किया। अभी इसके बाद में अगर मैं वो रन करती हूँ फिर से वो सेंटेंस, ये वाला डॉक, इसके बाद मैं इसको रन करती हूँ अगर फॉर एंटिटीज इन डॉक, हेलो, हाँ स्टेशन बस स्टॉप पे उतरी ना, उसके बाद पूरा केसर वाली स्टेशन
actually getting थोड़ा आगे output? जाना है हाईवे पे ही है, हाँ Why I am not getting it? लॉकिंग लग हाँ हाँ पास में ही होगा थोड़ा पिक्चर जैसा आएगा ऐसे आगे होके 2 ही मिनट वाले पास में Are you getting Twitter and Tesla's organizations now? Yes. I don't know why I am not getting. हाँ तुम अंदर आओगी ना तो वो वॉच वैली लगेगी But I think everybody is getting. साइड करके Maybe I missed something. So So this is how we can even set the customized named entity recognitions. Okay. So this is all about POS and NER. 208 I hope you all enjoyed the session, and this is how you can, I mean, whatever scenarios you have, POS का concept and NER concepts you can use into your projects that you are doing. Thank you. I'll share the collab files जिसमें proper code के proper comments के साथ what every step is doing वो mention है. That I'll share you in the WhatsApp group that is there. ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कभी कभी वक्ता की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी होती है कि उनका परिचय ही स्वयं बोलता है, लेकिन औपचारिकता के नाते अब मैं संक्षिप्त में मैडम का परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर जया गुप्ता एक अनुभवी शिक्षिका और शोधकर्ता हैं जिनके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD डिग्री है। उनका विशेष क्षेत्र मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इमेज प्रोसेसिंग है। उन्होंने स्प्रिंगर, एल्सेवियर, IEEE जैसे जर्नल्स में रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। गेम इंजीनियरिंग में एक इन्होंने किताब लिखी है। वे कई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देती हैं और उनके पास IBM, कोर्सेरा, AI जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत क्षेत्र में सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं। वे कोर्स डिज़ाइनिंग, यूनिवर्सिटी पेपर सेटिंग और आविष्कार जैसी प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रहती हैं। उनका फोकस AI, इंडस्ट्री 5.0 और डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए शिक्षा को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर विजेश नायर को कि वो आए और मैडम को प्रशस्ति पत्र दें।